Today I feel greatly blessed and honored to welcome Swamiji today in my establishment to read out his biodata. हिंदी में It's in English. Let it be. Language is no bar. Actually, I got this in English, so I was reading out in English. It makes me easy and comfortable to read out this. 1947 में चलेगा। Swami Abhidanand Ji is presently Acharya of Chinmaya Mission of South Africa, Durban. वो वहाँ पे 2006 से हैं। उसके पहले वो 2 साल से चिन्मयानंद सेवा सेंटर सिंगापुर के हेड थे। From his early years, he got so greatly inspired by Chinmayanand Mission's founder, Pujya Gurudev Chinmayanand Ji, that in 1993 he got himself enrolled in Vedanta course in this mission's Vedanta Study Center, Sandeepni Sadhanalaya. He completed the course and started serving the mission under the name of Brahmacharya Abhay Chaitanya. Swamiji showed his creative skill as a writer when he conceived and brought out Chinmaya Udghosh, a popular youth magazine of Chinmayanand Yuva Kendra, which he nurtured for 10 years till 2005. He also conceived and got published a coffee table book called Crescendo Peaks, which was released by Guruji in the Chinmayanand Vishwa Sammelan held in 2001. Swamiji has been regularly writing thought-provoking articles which are published in the mission's monthly magazine, Tapovan Prasad. Swamiji got initiated into sannyas by Puj Guruji Swami Tejo Maya Nand on Mahashivratri Day, March 8, 2005, when he received his present name, Swami Abhidanand. Besides India, Swamiji has been widely travelled all over the globe, including Nepal, Singapore, Malaysia, Indonesia, Bahrain and Africa, for conducting Janan Yajnas, a spiritual retreats and camps for adults, youth and children, through which he spreads the message of Pujya Gurudev. His vibrant and dynamic personality and oratory skill in both English, Hindi and Sanskrit has won the hearts of all those who have heard him even once. Endowed with vast intellectual depth and devotional zeal, Swami Abhidanand is a unique spiritual master who has earned the respect of audiences around the world for his clarity of thought and enabling knowledge. Exuding love, compassion and clarity, Swamiji has touched innumerable lives and ignited the flame of spiritual seeking in countless hearts. He exhibits a rare combination of love and devotion, detachment, knowledge and devotion, voice and dynamism. After reading his biodata, I realized that this day which I am standing today has a connection which started 40 years back. आप लोग को शायद आश्चर्य होगा अगर हम कहें कि 40 साल पहले इस आज की मीटिंग का बीज वो हमारी लाइफ में हुआ गया था। वो कैसे? हमारी भी स्पिरिचुअल जर्नी गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने शुरू की थी 1980-81 में, जब वो पहले इलाहाबाद आए थे और उन्होंने एक कैंप किया था जो कि 6-7 दिन का था प्रयाग संगीत समिति में। हमारे एक फ्रेंड हमें ले गए कि चलिए, सुबह वो एक किताब थी आत्मबोध और शाम को गीता की क्लासेस
उनका हमने सुने। और आश्चर्य की बात है कि उस समय रिलीजन के बारे में हमें यही मालूम था कि सबसे श्रेष्ठ रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, और उसके जो मेन किताब है वो बाइबल है, और उसका जो टेम्पल है वो चर्च है, और उसमें बस तीन पार्ट थे उसके, फादर, सन एंड होली गोस्ट। और अगर उस पूरी रिलीजन के बारे में ज्ञान लेना है तो उनके 10 कमांडमेंट्स थे, वो रख लीजिए तो आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में पूरा मालूम होता है। हमारी सनातन धर्म के बारे में हमें बिल्कुल नहीं मालूम था, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन स्कूल्स के पढ़े हुए थे। जो कुछ मालूम था वो घर पे ये मालूम था कि भाई जब खाना तभी मिलेगा जब वो थाली सच की पूजा घर में जाएगी और माता जी उसमें घंटी बजा के कुछ तुलसी डालेंगी, तभी हम लोग को खाना मिलेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी कंफ्यूज थे कि सनातन धर्म है क्या। उसमें इतने ढेर सारे गॉड गॉडेसेस, देवी देवता, सब अलग अलग डिज़ाइन और इमेज के, और काफ़ी कंफ्यूज थे। लेकिन जब स्वामी जी का हमने सुना पहला ज्ञान तो थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट आया कि कुछ और लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने वहाँ की 2 किताबें खरीदी, आत्मबोध जो 5 रुपए की मिली, और गीता जो चिन्मयानंद जी ने लिखी थी इंग्लिश में, वो 30 रुपए की थी। वो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद वो कनेक्शन तब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ जब चिन्मयानंद मिशन इलाहाबाद में आया, यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, और उसमें हम लाइफ मेंबरशिप जुड़ गए। कुछ मैगजीन आती थी, कुछ देखते थे, पर वो भी सब ऐसे ही चलता रहा, नथिंग मच। फिर 5 साल पहले हमने स्वामी जी को पहली दफे सुना, और वो योग हुआ कि रविंद्र जी ने इनवाइट किया कि महर्षि पतंजलि में स्वामी जी आएंगे, आप लोग सब आइए और सुनिए उनका कोर्स। आई थिंक वो लास्ट डे था जब हमने हिम्मत की कि चलो हम चलते हैं, सुनते हैं इनको, इसलिए नहीं तो वो रविंद्र जी बुरा मान जाएंगे। और शायद हो सकता है कि उस दिन रात को प्रवचन के बाद डिनर भी था। तो एनीवे हमने इनको जब सुना उस पूरे वक्त पे, तो हम इतना इम्प्रेस्ड हो गए, और हमने रविंद्र जी से बोला कि आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं कि आप हमें इसको लिंक शेयर कर सकते हैं। 1-2 महीना हम रिमाइंड करते रहे, फाइनली उन्होंने उसको अपलोड कर दिया अपने स्कूल की वेबसाइट पे। और हम जब मॉर्निंग में वॉक पे जाते थे तो कान में लगा के हमने सारे इनके डिस्कोर्सेस सुने। उसके बाद यूट्यूब की महिमा है कि जहाँ इनका सुनते थे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आ जाता था। तो हमारी एक आदत बन गई स्वामी जी से। और फिर इनके जब साउथ अफ्रीका मिशन से कनेक्ट हो गए तो हमने रियलाइज़ किया कि हर रोज़ एक नया एपिसोड जो है वो अपलोड हो जाता है। तो हमारी स्वामी जी ने जितनी शंकाएं और जितना नॉलेज दी अपने धर्म के बारे में, वो शायद हमें इनका आभारी हूँ कि ये इनसे साथ थे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्वामी जी के, इनका एक लेक्चर हमने सुना, वो था रामायण के ऊपर, जब केवट और रामचंद्र जी के बीच में जो संवाद था। हमने तब रियलाइज किया कि रामचंद्र जी का कनेक्शन इलाहाबाद से शुरुआती में था, जब वो 14 साल के वनवास पे गए और श्रृंगेरपुर आके उन्होंने वस्त्र चेंज करके और केवट का से मुलाकात की उनकी, और गंगा जी पार करके इलाहाबाद आए भरद्वाज आश्रम में। तो जो केवट का जो संवाद था, वो जो स्वामी जी ने सुनाया हम लोग को, उनका हम प्रवचन ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, वो कई दिन तक चला। और वो इतना इंटरेस्टिंग था
कि हम सोचते थे कि इसमें ऐसी क्या बात है कि कोई एक नाव वाला जो कि अनएजुकेटेड है, वो जानता था कि यही भगवान है। इनके सामने जब वो सामने आए तो वो इतनी दिल लगी, इतनी हंसी मजाक से उनसे बात करे। अब मिला ये ना हो, खाली एक इलाहाबादी कर सकता है। और शायद रामायण का वो पहला इंसिडेंट होएगा जिसका नाम बकैती लगा इलाहाबाद की। और हमने ये भी मालूम करा अम्मी जी खुद इलाहाबादी है, तो इनका जो भी प्रवचन होता है वो ऐसे ही होता है, जो कि मतलब हम लोग को इतने इजी फॉर्म पे बता दें। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम स्वामी जी आए तो हम लोग को केवल का जरूर संवाद के ऊपर चर्चा करें, बहुत ही आनंद आएगा। इनफैक्ट हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अभी 3-4 दिन पहले आप वृंदावन में थे और वहाँ आपका गीता का ये दे रहे थे, तो हमने सुना नहीं भागवतम और कृष्ण जन्म के बारे में बता रहे थे। और एक स्टेज आई जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इन्होंने बोला देखिए आप लोग घबराइए नहीं, ये जो है बहुत दिमाग नहीं लगाइए इसमें। जैसे प्रयागराज में आप हैं और आपके सामने गुलाब जामुन आ जाए तो ये नहीं सोचिए कि कौन हलवाई ने बनाया, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका घी क्या है, इसमें आटा कितना है, इसमें खोआ कितना गया। बस ऐसा करिए कि एक हाथ से उसको पकड़िए और उसके बाद वो टेक ऑफ करिए, अपने मुंह पे आपके अंदर चला जाए और उसके बाद बिना चबाए, बिना दांत लगाए उसको आप उसका आनंद लीजिए और वो खुल जाएगा। और दिमाग से नहीं, आप मन से आनंद लीजिए और वही जो है वो आपको असली ज्ञान उसी से मिलेगा। तो आज स्वामी जी का वो ज्ञान, वो आनंद, वो स्वाद आज हम लोग लेने बैठे हुए हैं और वाकई में हम ब्लेस्ड हैं कि आज स्वामी जी हम लोग के साथ हैं। थैंक यू स्वामी जी। अच्छा हाँ, हमने भी नहीं ऑफ किया था, सॉरी। तो सब लोग अपना मोबाइल ऑफ कर दें। स्वामी जी को आह्वान कर दीजिए। स्वामी जी ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रीमद्वेदविसेदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यासारेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्थाय सिद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय। आप सबको हरि ओम। लोग किसी बातचीत करने आए हैं आपसे, क्योंकि एक बार हम 7th क्लास में थे और हिंदी भी ठीक है, हिंदी इज फाइन। हाँ, वॉल्यूम कम है, थोड़ा कम करें, थोड़ा कम। ठीक है, थोड़ा हम हमारा वॉल्यूम खुद बढ़ जाएगा। तो ऐसा हुआ कि एक बॉक्सिंग क्लास थी, हमने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली और जो उन्होंने हमको बॉक्सिंग दिया, 2 लेफ्ट 1 राइट ऐसा कुछ था, तो हमने उनके चिट्ठी लिखी। हमने कहा कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स है क्या? बॉक्सिंग का करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं हो सकता। जीवन में जीत ही समझ में आता है क्या गलती होती है, क्या अच्छाई है, बाहर से नहीं समझ में। एक बार कोई आदमी के पास गया, well you take lot of good decisions, how do you take? He said by experience. I take right decisions only by experience. He said but how you had experience? He said by taking wrong decisions. तो पहली चीज है कि हमें परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाती रहती। आप सब लोग इतने अनुभवी लोग हैं, हाँ हम आपसे बुलवाएंगे भी तो आप बोलिएगा तो हमको रेस्ट मिल जाएगा।
हाँ, तो जीवन बहुत कुछ सिखाता रहता है। और 3-4 बात हम आपसे बोलेंगे जो कि हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और आपने भी उसको सीखा होगा। पहली चीज, जीवन बार बार सिखाता है, लोग बार बार सिखाते हैं, आप हमसे बहुत अपेक्षा मत करें। और कहीं ना कहीं जहां पे आपकी अपेक्षा ज्यादा हो, बोलिए ना, आगे पूरा करिए, हाँ, वही प्रॉब्लम है। वहीं दुख होगा। दुख होगा। आपके लिए nobody is cut to fulfill your desires. No husband can say that I got a perfect wife. हाँ तो बोलिए अब इसमें। Neither wife also cannot say that I got a perfect husband. हाँ एक्सेप्शन पूछ लीजिए लोगों से। हाँ नहीं, हमें पता है, हम सब खुश हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। There is nothing but perfect wife, perfect husband, ऐसा कुछ होता ही नहीं। हो सकता है अच्छी लाइफ, हम मना नहीं कर रहे हैं, अच्छे हस्बैंड हो। Nobody can get a perfect son, perfect daughter. हर तरह से जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं मिला। एक बार हम किसी के घर गए, उन्होंने कहा स्वामी हमारी वाइफ बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक चीज से हमको बहुत डिस्टर्बेंस। हमने कहा क्या? क्या? अंदर आइए। अंदर ले गए, कहते क्या हुआ? वो जब कॉम करती थी उनकी वाइफ, समझ गया क्या? हाँ बात समझ गया। बोले अब जिंदगी भर ये बोलते बोलते परेशान हो गए कि भाई इसको तो क्लीन कर दिया करो, लेकिन बस इसी को नहीं ठीक करती। आपके हम बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, nobody is made for totally for you. First thing I have to realize that the world is not made to fulfill my expectation, even if it is right. बहुत सी चीज हम चाहते थे वो नहीं हुई। रोज ही हमको समझ में आता है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी थोड़ा और कम करो, कल लगेगा और कम कर दो, फिर लगेगा और कम कर दो। आप खुश रहोगे। एक्सेप्टिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग, दैट इज अ सूत्र। जैसा वैसे एक्सेप्ट कर लो। डोंट ट्राई टू चेंज द अनचेंजेबल। यहां इसको आप पानी नहीं बना सकते, इसका नेचर यही है। आप तो बोलिए, यू मस्ट हैव सीन दैट। हम लोग परेशानी इसलिए हो जाते हैं, फिर होता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। एक वाइफ थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला, भाई बहुत नाराज, बोले आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, अरे सॉरी बर्थडे है, आपको फिर लेट हो गया। अब मैरिज भूल ही गए थे कि हमारी उनकी बर्थडे भी है। कहा कोई याद तो होगा नहीं, कहा नहीं मैं भूल गया, और नाराज हो गई वो। लेकिन हस्बैंड बहुत ही क्लेवर थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारा चेहरा एक ही रहता, लगता नहीं कि तुम ग्रो कर रही हो, लेडीज पे ही सुनना है। वो खुश हो गया। तो अपने जीवन में ना अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी उनके बच्चों ने सुना। अब सबकी बात छोड़ दीजिए, वो परंपरा तब से चली आ रही। Nobody is going to listen to me and you. क्या मतलब किसी से? हम चेंज नहीं कर सकते किसी को बहुत ज्यादा, कुछ कर सकते हैं। And you have to know what is my limit here. Don't cross the limit. That is God's area now. हमारी एरिया नहीं है, हम क्या करें? इसलिए गीता में भगवान ने बोला अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी। बोलो नमे भक्त यो मत भक्ता समेत। बोले पहली बात है अपने मन में मस्त रखो यार। नथिंग इज सो बिग इन दिस। ऐसी कौन सी बात हो, आनंद में रहिए आप। एक लड़का सुसाइड करने जा रहा था, वो रेलवे स्टेशन में टिफिन बॉक्स लेके गया। जानते क्यों? उसने कहा कहीं गाड़ी लेट हो तो भूखे मरेंगे क्या? वो कहा कि आनंद के साथ मरेंगे, हम क्यों भूखे मरेंगे? लेट मी हैव माय लास्ट सपर।
पहली चीज ये है कि अपने अंदर कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए। ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं होगा। आप बोल बोल के थक जाओ, समझा समझा के थक जाओ, नहीं चेंज होते लोग यहाँ। आई होप आप एग्री करेंगे। कोई लोग अच्छे हैं, वो कुछ करते भी हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है, उनका भी नेचर ऐसा है, नहीं हो पाता। सीक्रेट इज दिस, फर्स्ट सीक्रेट इज दिस। हाँ, एक बार किसी ने कहा हमारे घर में बहुत हारमोनी। हमने कहा क्यों? बोले हार मानी। हमने भाई अपने पत्नी से हार मान ली है। उन्होंने कहा देखिए हमने पत्नी का नाम ही रख दिया सॉरी। हाँ, सॉरी नाम रख दिया। बोले सॉरी तेरा चाय लाना। सॉरी हम देर में आएंगे। देखो एक महात्मा के पास कोई गया, उसने कहा कि ऋषिकेश की बात, बोले महात्मा जी आप उपदेश दीजिए। तो उन्होंने मुंह खोल दिया, ये क्या उपदेश हुआ? कहते को दांत टूट गया, जीभ रह गई, जो कठोर होता है वो टूट जाता है, मुलायम रह जाता है। जो जितना डिस्टर्ब है उतना कठोर होगा। तो हमारी बात आपको लग जाएगी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। हम आई हैं, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। I want it this way. अरे it is not happening. Do my way or hit the highway. This is not the way the world is. झुक चलना। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक बार एक सास आई हमारे पास। हाँ, बहुत नाराज, हमसे नहीं बहू से। बोले कि हमारी बहू जो है, हम लोग आए थे स्वामी जी, 5-6 बजे उठते थे, चाय बनाते थे, खाना बनाते थे। हमारी बहू 11 बजे उठती, ये करती वो करती। हमने कुछ बोलती तो नहीं ना? बोले नहीं, अपनी चाय खुद बनाते हैं। ये कोई तरीका हुआ क्या उसका? बहुत देर तक उसने हमको सुनाया, पता नहीं क्यों सुनाया, ऐसे हम ही नहीं उठते। हमने कहा काम करो, आप खुद एक चाय बना के उसको दे। बोले हम 67 है, शी इज हार्डली 35। जबरदस्त, क्या कर रहे हैं स्वामी जी हम? आई शुड मेक इट। आई सेड आप 1 हफ्ते बना दो बस हमारे लिए। आप 1 कप चाय बना के उसके पास ले जाया करो। जब वो सुबह उठ जाए 11 बजे रानी की तरह, तो आप 1 कप चाय दे दें। हमने कहा बस हमारी एक बात। 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद सास बहू दोनों आई। हमने कहा पता नहीं क्या होगा। हमने कहा पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, अब जब आई तो उन्होंने बोला स्वामी जी, फर्स्ट डे शी वाज शॉक्ड टू सी कि हम चाय लेके बैठे। सेकंड डे शी सेड मम्मी आप मत बनाइए, हम बनाएंगे। थर्ड डे शी गॉट अर्ली एट 6-7 o'clock. फोर्थ डे शी मेड माय टी बिफोर आई। आप समझ गए? और अल्टीमेटली शी सेड नो मम्मी, अब आप नहीं बनाइएगा, आप इतनी बड़ी। हमने कहा बड़ी की बड़ाई यही होती है। जानते बड़ा कौन होता है? हाँ, जो झुकता है, जो देता है। छोटा नहीं झुकता। हाँ, बात नहीं करें, बात बोले अब ये चाय बना के देती। हमने कहा हमारी चाय कहाँ है? तुम लोग आपस में चाय बना के पी रहे। दूसरी बात हम आपसे बताएं, जीवन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है प्यार करना। आप जिससे परेशान है ना, उसको आप प्यार नहीं करें। और प्यार करना इज नॉट दैट मेंटली हमने एक्सेप्ट, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर, हमारा मन। हम कल ही ये बात बता रहे थे, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम जोहानिसबर्ग जब हम गए 2006, इमिग्रेशन की लाइन में हम लगे हुए और हमारा ऐसे ही गिरवा पड़ा। कल आप लोग थे शायद, आई टोल्ड आल्सो। तो वहां के एक व्हाइट पर्सन आया, अफ्रीका, बहुत ही लंबा चौड़ा। उसने कहा प्लीज कम, आई वांट टू टॉक टू यू। व्हाई यू आर इन माय कंट्री? लेट मी सी योर पासपोर्ट एंड वीजा। पासपोर्ट दिखा, उसमें लिखा था रिलीजियस वर्क। He said, but why you do the religious work here in my country? What will you do? I said, I have come to serve India.
He said, I'm angry person. Anything? I said, I love you. Please give me a hug. इतना खुश हो गया. लोगों को पैसे नहीं चाहिए, अच्छा खाना नहीं चाहिए, आपसे कोई प्यार से बात भी कर दे. घर ना एंटीक पीस नहीं बनता कि कोई ऐसे करके एंटीक पीस है, ना सोफा सेट से बनता, ना एजुकेशन से बनता है, ना पैसे से बनता है. घर बनता है अच्छे प्यार से और अच्छी जबान से. तो घर टूट जाए. Behind every breaking of the house is an angry person. He is a person who rejected the whole everybody. देखो एक संत थे उड़िया बाबा, उनके नाम वृंदावन का आश्रम. उनके घर, उनके आश्रम में क्या हुआ, एक लोटा चोरी हो. जिसका चोरी हुआ उसने कहा इसने चोरी की. कहा देखो ऐसा है, वो लोग बैठो, जो कारण होगा उसको आश्रम छोड़ना पड़ेगा. बोले हाँ छोड़ देंगे. उनका देखो लोटा किसने चोर, तुम किसके कारण आश्रम में हो? बोले सत्संग के कारण. बोले सत्संग क्यों होता है? बोले आपके कारण. बोले इसलिए आश्रम का कारण हम हैं, इसलिए चोरी का कारण हम. उन्होंने उठाया और चल दिए. बोले नहीं, आप नहीं, हम लोग खाएंगे, हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे. First thing is I'm not having expectation. Second thing is I accept person around. बहुत अच्छा हो सकता है हमारा जीवन. अपने मन में हम कई दीवार बना के चलते हैं. That should not happen. That should happen. अरे नहीं होगा वैसा. First is acceptance without expectance. I hope. सुनाई पड़ रहा है ना पीछे तक आपको? हमें ऑर्डर दो. Acceptance without expectance. Acceptance without expectance. A है और E. हाँ एक्सेप्ट कर लिया, जैसा एक्सेप्ट कर. लाइफ डिफिकल्ट नहीं होती. इट इज माई माइंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट. जब से उसने एक्सेप्ट कर लिया उस मदर इन लॉ ने, बहुत अच्छा हो गया. तो हम ऐसी शिक्षा, हम तो लोगों के घर जाते हैं सीखने के लिए. एक बार हम किसी घर गए तो उन्होंने बोला कि रानी स्वामी जी आए हैं, प्लीज गिव हिम सम कोल्ड ड्रिंक और सब. उसने दिया. हमने कहा आपने बड़ा अच्छा घर सजाया. बोले रानी कैसे सजाया? हमने कहा शाम को आप आएंगे एक में. बोले रानी विल यू कम? 4 बार 5 बार 6 बार रानी रानी हो गया. हमने कहा कौन है रानी भाई? आप सब बात इसी से पूछ के करेंगे? बोले स्वामी जी हमारी बहू है, 5-6 साल पहले है ये. हाँ रोज सुबह उठ के सबसे पहले सबको प्रणाम करती है. जब तक घर के सारे बच्चे खाना नहीं खा लेते ये नहीं खाती है. हम उस पर नाराज होते हैं, वो नहीं होती. इसने हम सबको जीत लिया है, हम लोग की रानी बन गई है. इट इज इजियर टू लिव, बट टू लिव विद अ कॉन्कर्ड माइंड, एवरीबॉडी इज कॉन्कर्ड, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. बोले ये जो कहेगी वो हम करेंगे, पर हमको पता है ये वही कहेगी जो हम चाहेंगे. जिन्होंने imposes herself upon me, आप उससे परेशान हैं जो आपके ऊपर अपने को impose करता है. I hope I'm right. Say yes. वो रानी बन गई. जो विनम्र होता है ना वो जीत जाता है. घर विनम्र से ही बनता है, घर कठोर से नहीं बनता. House is not made by very strict person with lot of disciplines. Discipline should be backed by love. Then I accept the discipline. आपको एक बात बता, हम यहाँ क्लास 1 में थे, किसी स्कूल में था आपको नहीं बताया. और दिवाली के टाइम तो जो क्लास टीचर थी, ये 4 पहिए वाली जो 4 पाँव होता है ना चेयर का, 4 legs of the chair, उसके नीचे हमने चिटपुटिया रख दी. हाँ क्या क्या बोलते हैं पटाखा वाला जो होता है, जस्ट प्रेस इट एंड इट जस्ट क्रैक्स. उनके रख दिया हमने.
वो बोल गया और सब क्लास के सामने ही हुआ। I was in trouble, हमको लगा ऐसा, हाँ? बोले who did it? Because everybody started laughing. सब लोग हमारी तरफ देख के हम हंसे। बोले आई इधर, टीचर्स हम आ गए, जानते क्या किया उन्होंने? Choose your own punishment. Choose your own punishment. जो तुमको पनिशमेंट लगे उससे मैं नील डाउन हुआ करता, अब तो नहीं होता होगा शायद। हमने कहा ठीक है नील डाउन, बोले नो, I will give you punishment. She just hugged me. बोले this is your punishment. हमने कहा what more? उसके बाद जो है ना इतनी क्वाइटनेस आ गई हमारे में। If one person in your life accepts you, you will be happy. Don't be judgmental about that. The first point, acceptance without Expectations. हाँ बाद में वो ना बंद करें। अगली बात, अब तक तो नहीं है, shall I continue? हाँ, yes, हाँ? अभी तो शुरू हुआ है। दूसरा है love without attachment. Can anybody say what is the difference between love and attachment? We love. Attachment में क्या होता है? Because you gave it to me, therefore I will give it to you. Love, even if you have not given to me, I will still do it. सूर्य को सब लोग जल नहीं चढ़ाते, लेकिन सूर्य प्रकाश सबको देते। पृथ्वी को सब लोग प्रणाम नहीं करते। जितनी बड़ी चीज है सब फ्री है यहाँ। They are all lovers. आप जिस वायु को ले रहे हैं, आपने एक मंत्र भी शायद वायु का नहीं पढ़ा हो। You have not chanted one mantra of वायु, but still that वायु gives us. अपने प्यार की जैसे कोई कीमत लगा देता है ना, उसका प्यार खत्म हो जाता है, उसकी कीमत खत्म। हम यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इसकी कॉस्ट लगा दी तो इस कॉस्ट की वैल्यू नहीं रहेगी। This was difference between Gurukul and the schools. School had fees system, Gurukul had Dakshina system. Dakshina was not fixed, it can be a grant and it can be a leaf also. देखो एक लड़का था, उनकी माँ बीमार, तो उसने बहुत सेवा किया, 4-5 दिन 6 दिन, फिर आखिरी दिन उसने एक लिस्ट दे दिया, मम्मी ब्रेड लाने का 100 रुपीज, चाय बनाने का 25 रुपीज, हाँ दवाई लाने का ये, पानी पिलाने का ये, और करीब आया 2000 रुपये। माँ ने कहा तुमको 5000 दे दो, अब तुम एक पेपर ओपन ले आओ। आप समझ गए? उसने कहा तुमको 9 महीने पेट में रखने का कॉस्ट तुम ही लगा, लॉजिंग बोर्डिंग फ्री, हाँ तुम्हारी नैपी चेंज करने का, और 4 इयर्स तुमको नहलाने का, उसकी कॉस्ट तुम रख लो। तुमको जब स्कूल में तुम जाते थे, तुमको रोज छोड़ने जाना, होमवर्क करवाना, उसकी कॉस्ट लगा लो। आप लोग तो माता पिता हैं, आपको पता है। वो लड़का रोने लगा, माने कहा बेटा हमारे प्यार की कोई ऐसी कीमत नहीं रहेगी, हम तुम्हारे लिए हमेशा नहीं। जानते गुरु की क्यों कीमत होती है? क्यों कीमत होती है गुरु की? बोलिए ना। हाँ कोई इच्छा नहीं रखता है पाने की। बोल दिया, ठीक हो, सब कुछ देता है। उसके मन में ये नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं, आई शुड गेट बैक इन रिवार्ड। अच्छा स्टूडेंट रहे, बेकार रहे, स्टूडेंट टीचर को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन गुरु शिष्य को नहीं रिजेक्ट करता। दिस इज कॉल्ड लविंग। अटैचमेंट में क्या होता है? आई डू इट, आई वांट द रिवार्ड बैक फ्रॉम यू, आई गिव यू जॉय, यू शुड गिव मी द जॉय बैक। जब आप क्या जरूरत थी तो हम थे, हाँ, लेकिन हमारी जरूरत पे आप क्यों नहीं आए? दिस इज अटैचमेंट। आपने क्यों नहीं हमारे लिए किया? हमने तो आपके लिए बहुत किया था। आई रिमेंबर अ लॉट व्हाट आई डिड। टू लव मींस आई फॉरगेट व्हाट आई डिड एंड आई रिमेंबर व्हाट यू डिड। हमने जो किया है भूल जाएंगे, लेकिन जो आपने किया है
आपको पता है राम जी और कैकेयी का क्या संबंध था? यही संबंध था। राम जी ने अगर तीनों माँ में सबसे अधिक किसी को प्यार किया था तो कैकेयी थी, और उन्होंने वनवास भेजा। राम जी ने ये नहीं बोला कि देखो हमने तो आपको इतना दिया था और आप हमको वनवास भेज रही हैं। उल्टा बोला कि सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो भी तुम्हारा चरण अनुरागी। देखो प्यार देखो, वर्ल्ड डिमांड करता है कि प्यार को हमसे अटैचमेंट। I will give you what I want, but don't ask me anything. I cannot give you whatever you ask. आप हाँ तो बोलिए। हाँ, it will not, it won't. आप लोग तो अनुभवी हैं। आप बच्चों के साथ देखिए, एक बार किसी घर गए, बोले स्वामी जी सच अ बैड न्यूज आई। हमने क्या हो गया? बोले माय son married. My son married. He's in America. He got married. I said, it's good news. बोले पूरा तो सुनिए आप। जब आप बोलते तो चुप रहे। अब आप सुनिए। हमने बोले he married the girl whom I did not want he should marry. वो वाइट है, क्रिश्चियन है, ये है, वो है। रोने लगे। हमने कहा फिर? हमने कहा देखिए ऐसे भिक्षा का टाइम है, पहले हम भिक्षा ले लेते हैं। पता लगे मामला गर्म हो गया, हमारी भिक्षा चली गई और आश्रम में कुछ बना ही नहीं होगा। उनको लगा स्वामी जी बाहर गए, तो खाना वाना हो गया, वो मम्मी पापा दोनों बैठे। हमने आप बताइए। हाँ, उन्होंने बताना शुरू किया। बोले कि उसने मैरी कर लिया। उस स्वामी जी व्हाट अनफॉर्चुनेट फादर आई एम। मेरा बच्चा हमें को कार्ड भेज रहा है। उसने हमको डिस्कार्ड कर दी। हमको कार्ड भेज रहा है। माँ ने कहा रहने दीजिए, अब ये हो गया, सब हो गया। उसने कहा नहीं, अब आशीर्वाद लेने जा रहा है हमारे पास। हम जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे उसको मारेंगे। That was his words. हमने कहा एक बात नहीं, बोले सही किया गलत किया? हमने गलत किया। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? हमने उसको लोन लेके अमेरिका भेजा था। लोन लिया था उसके लिए, इसी दिन को देखना था। हमने कहा वर्ड नहीं, आप नहीं उम्मीद करिए कि वो आपके हिसाब से चलेगा। गलत किया, गलत किया। नहीं आपको तो लोग क्या करते हैं, हम मान जाते हैं। 3 साल आपने वेट करवाया उसको, नहीं माना, क्या कर सकते हैं? He did not obey. आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या करें? बस प्यार करिए। समझा, बहुत समझा दिया, रोना बंद करिए। Whole world tells you, don't think I will follow you. हम कितने लोगों को बताते हैं जब कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, हाँ ऐसे कर लो। आपको बताएं 1% में नहीं सुनते। हमसे नहीं बोल रहे हैं, अब बोलते ही नहीं। ये ऐसे ही है, आप खुश रहो, आप पता लगा लो कि ऐसे ही नहीं। उनकी शादी होने दो, आप यहाँ रिसेप्शन दे दो, बोल दो खुले आम कि ऐसा हुआ, नथिंग बैड अबाउट इट। खुश रहो, आप आनंद में रहो, दुखी मत हो उसके लिए। वो बेटा भगवान का है, जैसा करना हो करो। यू डिड योर बेस्ट, नाउ लीव द रेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। You are leaving, you are trying your worst and you are preparing for the best. ऐसा ही है, वैसा है। World demands love. And attachment is because I want it, you should follow it. आपने क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों नहीं वहां हुआ? अरे भाई नहीं होगा। इसीलिए हर पेरेंट्स ना अपने बच्चों से मत पूछो, पास रहे तो अच्छा रहे तो नहीं अच्छा रहे। He is not a steering that I can turn and make it like. अपनी उसकी दुनिया है, अपनी सोच है, अपनी स्टाइल है। अच्छा आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा परेशान हुए या चिल्ड्रन से? You are troubled more by your parent or child? Child more, because I can't love. हमने दिया, after that his business. I can't. हमारे पेरेंट हमसे परेशान हुए होंगे। Because I cannot turn him, I can't mold him. हम एजुकेशन दे सकते हैं,
He has to imbibe it. हम यहाँ पे टॉक दे सकते हैं, लेकिन आप कितना सुनेंगे नहीं सुनेंगे, that is not in my hand. हर जगह एक रेखा है, not beyond this. But still, my love will be there. I hope I am making some sense. हमारी बात है, एग्री करते हैं, हाँ तो बोलिए आप. Lot of it. Most of it. देखिए एक बात हम बताते हैं. हमारे गुरुदेव का नाम लिया अभी उन्होंने, नरेंद्र जी ने, स्वामी चिन्मयानंद महाराज, हाँ, वो बॉम्बे में एक बुक स्टॉल लगा हुआ था, तो वहां सब लोग बुक्स लेते थे, कोई अकाउंट्स के हिसाब रखता, तो एक कोई ब्रह्मचारी था, पता नहीं क्या हो गया उसको, वो बुक स्टॉल के बाद चला गया टेकिंग ऑल द अकाउंट्स, पता नहीं क्या हो गया, 80,000 था, मे बी 30 ईयर बैक, अब वो आया ही नहीं. He came after 1 year. And goodness of that brahmachari was, he straight away went to Gurudev. Gurudev said, hey, you have come, money is over. Then he said, Swami, this and this happened, this and this happened. I know you will not accept me. He said, who told you? Come on. He embraced. He was inducted in the mission, re-inducted. महात्मा वो है जो दोष देख के आपको छोड़े ना. राम जी ने केकई को नहीं छोड़ा. छोड़ने का मतलब है यू आर नॉट रिजेक्टिंग समबडी आउटसाइड. सेल्फ रिजेक्शन. And moment you start rejecting others, you reject yourself. And when you reject yourself, it will be disturbing inside. All outside rejection is a sign of self-rejection. And self-rejection, it will suffocate you. आप अपने आप से कैसे दूर भाग सकते हैं? This is second point. Attachment में I want. Attachment में I demand attention. In love, I give attention. बोलो आपने बात ही नहीं किया मुझसे. एक बार हमने किसी को फोन लगाया, उसके हस्बैंड का कुछ हो गया. उसने कहा कि स्वामी जी, हमने 2 साल बाद फोन लगाया, 1.5 साल बाद. इंसिडेंट हुआ 1.5 साल पहले, हम भूल जाते हैं. हमने कहा सॉरी, हम भूल जाते हैं. लेकिन स्वामी आपने सिर्फ 4-5 मिनट बात कर ली, आपके पास बहुत काम है, कंटिन्यू, हम खुश हैं. दिस इज लव और अटैचमेंट. लव. एक बार किसी ने हमसे फोन लगाया, कहा प्लीज टॉक मी फॉर 10 मिनट्स. मैंने कहा 10 मिनट्स? अच्छा चलो बात कर लेते हैं. कहा प्लीज टॉक मी फॉर अदर 5 मिनट. You cannot satisfy. अटैचमेंट नहीं होता है, हम किसी से बहुत खुश नहीं हो पाते. आपको एक बात बताएं, हमें एक गिलास पानी देना, उसको भी जिंदगी का ध्यान रखना चाहिए. और हम बड़ा से बड़ा काम कर दें, हमें भूल जाना चाहिए. एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, उपकारम स्मरेत् नित्यम अपकारम च विस्मरेत्. उपकारा, दूसरे को उपकार को याद रखो, लेकिन जो अपकार किया वो भूल जाओ as much as possible. हमने जो अच्छा किया forget about it, as if I have not done it. इसी को बोलते हैं love. अटैचमेंट नहीं. अटैचमेंट में I demand attention. अटैचमेंट में I demand that you should talk. हमारे साथ बैठे नहीं आप, हमको कुछ दिया ही नहीं, आपने हमको देखा ही नहीं. एक बार कहीं हम सिंगापुर में थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी और कृष्ण लीला हो रही थी. हाँ, हम भगवान कृष्ण की आंख का वर्णन कर रहे थे. कोई आया क्या, सुनिए आपने भगवान कृष्ण की आंख के बारे में बताया, हमको देखा ही नहीं. हमने कहा कहाँ कृष्ण, कहाँ आप तो कंस और पूतना से भी बेकार हैं. इतनी क्या बात है. पर तो हर जगह उनको कुछ चाहिए. एंड दीज पीपल आर वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद. Those who are attached, they demand too much. Those who are loved, they give a lot. पर किसी के साथ रहना should be as light as a feather. Not to take the load of that person I am living. किसी के साथ रहना कुशन हुआ. पहला था accepting without expecting. दूसरा है loving without attachment. Right? 2 बात, दोनों डिफरेंशिएट करें. नहीं है तो नहीं है.
लोग ना देते हैं और देने के बाद उनको ये लगता है हम आपके पास आए। अच्छा आप बताइए, हमको जानते हैं क्या लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि हम आपके पास आए, क्योंकि बोलने वाला सबसे अधिक बेनिफिट है। हम जब बोलते हैं तो वो सारी बात हमारे दिमाग में ज्यादा जाती है। You can afford to be drowsy, you can afford to forget, but these things are retained more in me than in you. तो कृतज्ञ तो हमें आपके होना चाहिए। I should be more grateful. Moment you discover this small things, I think there is nothing which can make very sad. Make very sad. This is the second point. Third point, planning without worrying. Planning without worrying. हाँ फोन बंद कर ले, बाद में आप लोग बाद में। प्लानिंग विदाउट वरीइंग। अच्छा प्लानिंग में पता है क्या है? ये प्रोग्राम हुआ, इसकी प्लानिंग हुई थी, हुई होगी ना? आपको पता था कि हम आ रहे हैं, इट मस्ट बी अनाउंस। आपको ही पता। वरीइंग में क्या होता है? यू नो व्हाट हैपेंस इन वरीइंग? व्हाट? बोलिए ना। स्ट्रेस हाँ पता नहीं आए। प्लानिंग में होता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यू स्टार्ट इमेजिनिंग समथिंग। वरी। हाँ, हम दिल्ली से सिद्धवाड़ी जा रहे हैं और जैसे ही सिद्धवाड़ी मतलब ये कौन सा एयरपोर्ट है? नहीं सिद्धवाड़ी कौन सा एयरपोर्ट? गग्गल एयरपोर्ट। वहां गए, यू विल नॉट बिलीव 5 minutes before pilot announces what happened? Engine had failed. क्या हो गया? Engine had failed something and we had to go back. वो turn, इंजन फेल हुआ, उसकी वो व्हील टूट गई, कुछ ना कुछ हुआ। सब लोग कह रहे हैं क्या हुआ? हमने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिमिरो उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कंचन बरन विराज सुबेसा। आप चिंता मत करो। Even if we would die, let us die peacefully. If you are worried, you will be worried. No need to worry. Worry has not sorted any person's problem. Worry मतलब आप चिंता करके you are totally non-productive, कुछ काम करो तो भगवान को दो। हम इंदौर में थे, किसी के घर गए, देखा पूरा जो एक लेडी होती है उसका पूरा बाल बाल था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं स्वामी, कैंसर हो गया। हमने कहा सॉरी। कहा नहीं सॉरी वाली कुछ नहीं बोली आप, हमारे पास डॉक्टर ने 3 months दिए, आफ्टर 3 months आई विल नॉट डिस्कस। उसने इतनी करेजियसली बोला। मैंने कहा तुम दुख नहीं हो रहा है आपको? कहा हमारे 2 बेटे हैं, दोनों सेटल हैं, बहुत अच्छे हैं। अब आप हमको ये बताइए अगर 3 महीने बाकी हो तो कौन सा उपनिषद पढ़े, कौन सी गीता पढ़े, हाउ टू मेक दिस 3 months वर्क। आई शुड नॉट बी सैड। जिस भगवान ने 67 years हमको अच्छा रखा है, कहीं ना कहीं से हमको प्राण छोड़ने ही, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई हैव टू गिव द बॉडी, आई नॉट सेलिब्रेट दैट डेथ आल्सो। इसलिए महात्माओं की षोडशी होती है, तेरे नहीं होती। The saints leave their body. It is not 13 days. 16 is a sign of completeness. वो सेलिब्रेशन होता है, निर्वाण उत्सव होता है, दुख नहीं होता उसमें। क्यों? He fulfilled his life. Worries has not given anything to anybody. क्या चिंता करना? तो होगा। I hope you will be. बहुत चिंता करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चिंता घटती है बढ़ती है? बोल ही नहीं रहा। घट जाती, अरे बढ़ जाती है। जानती क्यों बढ़ जाती है? जानती क्यों बढ़ जाती है? क्यों? नहीं क्यों? ज्यादा लोग आसपास रहते हैं। पहले तो हम अकेले 10 साल के थे तो फ्री थे।
पत्नी आई, पत्नी आने पे बड़ी बढ़ी या घटी, अब आप मत बोलिए। किसी ने हमसे तो यहाँ तक बोल दिया, स्वामी जी वरी इनवाइटेड फॉर एवर इज वाइफ। हम एग्री नहीं करते थे, WIFE हमारी वरी आ गई, हमें वक्त जवाब देना पड़ता है। हमने कहा वरी करते हैं, होती नहीं है, आप प्लानिंग करिए। फिर बच्चे आए और वरी, फिर ग्रैंडसन, और जहां अटैचमेंट होगा वहां वरी आई जाएगी। मोमेंट यू हैव वेरी गॉडलेस इंटरैक्शन, गॉडलेस रिलेशन, गॉडलेस इंटरैक्शन विल ऑलवेज एंड अप इन अ वरी। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको चिंता हो रही है? बोलिए ना, नहीं हो रही। अगर आपका बेटा बोलेगा पता नहीं क्या बोल जाए, पता नहीं ठीक बोलेगा कि नहीं हो, पता नहीं। डिबेट जब होता होगा, you must have seen the debate competition. How much parents are more tensed. Yesterday I went to Maharishi Patanjali. One girl told, you know, in the school, parents are more tensed in the exam than the students. वो ज़्यादा वही करते हैं, अटैचमेंट भी हो, वरी ना हो। अरे भगवान का ईश्वर, राइट? हम यहाँ तक आए तो पता नहीं बोलना क्या है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। हमने कहा कार में बैठे भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान बोलेंगे बोलवा देंगे। Why should I carry the load of everything? Do your best and leave the rest. And relax. आपके हाथ में नहीं है सब कुछ। अरे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अरे दवाई लो, शांत रहो यार। आप जाओ कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्या करेंगे आप? परेशान क्यों होते हो? हाँ, एक कोर्ट हो रहा था, कोर्ट, हाँ, वहाँ कन्विक्ट भी था। यहाँ तो लॉयर्स भी हैं, जजेस भी हैं। जज ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, कन्विक्ट ने कहा सोडा विद विस्की। पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं आपका, जस्ट अ जोक है, लेकिन बात ये है, learn to laugh on the life itself. ऐसे ही है सब। You know, आपने आइंस्टीन का नाम सुना? उसका नहीं, आइंस्टीन नहीं हो, एडिसन। You know what happened? Whole life's work got burnt. आपको पता है? आया उसने देखा, उसने कहा what? उसके बाद next time, बोला so what? Converting the what to so what is called art of living. Wow. Converting the what? So what? It happens. बहुतों के साथ हुआ था, हमारे साथ में कौन सी बड़ी बात होगी? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? कभी कभी हमको लगता है कि हम तो चंद्रमा के पास से पृथ्वी को देख रहे हैं। हाँ, पृथ्वी, उसमें 7-8 बिलियन लोग हैं, उसमें से एक तो हमारा परिवार छोटा सा, 2-4-10 लोग होंगे। अब तो बच्चे चले जाते हैं पढ़ने, घर में मुर्गा मुर्गी रहते हैं बस। अब वो नीचे रहते, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? From the complete picture, if you see, there is nothing so big about it. हमारी बीमारी हो गई, हमारी हो गई, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मरने को कुछ बहाना तो चाहिए, हार्ट अटैक होगा, किडनी फेलियर होगा, डायलिसिस, कुछ ना कुछ हो तो हो। Let us be careful about it. That's it. You can't take over care about yourself also. You can plan, but don't worry. First was accept. Acceptance without expectation. Second was Loving without attachment. third is worry. Planning without Planning without Worry without planning. Planning without हाँ, very good. Fourth, and I'll conclude after this. Realizing without brooding. brooding. What is a realization center? Brooding मतलब पता है क्या? हम किसी बारे में एक ही बात, सर्कल्स में हमारे थॉट चले गए। हमने ऐसा कहा तो नहीं हो रहा है, ये उन्होंने ऐसे बोला, स्वामी जी हमने उनको तो नमस्ते किया था, उन्होंने हमको नमस्ते नहीं किया, आई डोंट नो क्यों नहीं किया। अच्छा ये हो गया, फिर वही थॉट आया, हमने उनको नमस्ते किया था, नहीं हुआ, फिर वही थॉट। अरे तुम रियलाइज करो, भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है,
You did your best, now leave the rest. You realize it and forget about it. एक पेट्रोल टंकी पे हम देखे थे, वहां लिखा था fill it, shut it, forget about it. Fill it, shut it, forget about it. I just realize it. क्या हो गया उसमें सीमा? हम लोग ना हर चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं. We suffer from somebody else's bad response more than our good response. We suffer from somebody ignorance more than our knowledge. ऐसा तो ऐसे ही है. हम नहीं चेंज कर सकते. I have to brood over it. Don't go in circles. Go in line and reach somewhere and complete the thought. If thought is completed, that means your thought was good. When thought is not right, it goes in circles. और जैसे जैसे आदमी और उम्र बढ़ती है, आपको एक दो चीज और सुना, हमारी भी बढ़ रही है. आपको पता है गुस्सा ज्यादा आता है कि कम? तो गुस्सा क्यों आता है? रिटायरमेंट के बाद गुस्सा ज्यादा है कि कम आएगा? रिटायरमेंट के बाद आपको एक दो बात सुना देता है. जब तक आपके पास हाथ है, पैर है, आप देखने में ठीक हैं, आप चलते फिरते हैं, आपकी कुछ वैल्यू रहती है. यू आर प्रेजेंटेबल. धीरे धीरे जो उम्र बढ़ती है, हमारे हाथ पैर कम काम करते हैं, हाँ उतने प्रेजेंटेबल नहीं होते. थोड़ी सी आपको निग्लिजेंस मिलेगी. और जब निग्लिजेंस मिलती है और उनसे मिलती है जिसके लिए आपने बहुत किया था. भगवान ऐसे सिखाते हैं. उस समय हमारे मन में बात है, रियलाइज व्हाट आई डिड. टॉपिक इज ओवर. हमारा यहाँ पे कोई है नहीं जाना. आई एम इन माई इवनिंग ऑफ माई. एक करीब 60 साल के आसपास बोले, स्वामी जी हमारा आधा जीवन निमित्त. हमने कहा आधा नहीं, 3/4 से ज्यादा. What do you mean? 120 साल जी हुए क्या? देवराम बाबा. आपका जीवन गया. Within 10 to 20 years आप लोगों में से, हम लोग में जितने लोग हैं, पूरा कर दीजिए. कई लोग नहीं रहेंगे. आप तो बोलिए. हाँ, ज्यादा नहीं रहेंगे. अच्छा, अब आपका जो यूनिक ऑर्डर है, there is a way. When system says that I am not living in a system to get something, हम भगवान को वचन करें. हाँ हम बात I will take Lord's name. ये भी सत्संग है. You are achievers. आपने पैसा कमा लिया, घर बना लिया, बच्चे सेटल हो गए. Before work leaves you, please leave the work. Before people leave you, please leave them. That is called realizing, not brooding. बोले हमारी बहू ने, स्वामी जी पता नहीं कहाँ रोज चली जाती है शाम को घूमती, हमको बताती भी नहीं. बोले कैसे पता नहीं क्या? No need. Or when elder people keep on asking questions to younger people, they get repulsive of the elder people sometimes. I have my own value. I don't want you. Let me tell you, this signal should be given to all youngsters. I'm telling you, this world is a very selfish place. एक तो हम बात बोल देते हैं आपसे. लेकिन ओल्ड पर्सन का भी एक चार्म होता है यंग पर्सन के लिए. जानते क्या आपका चार्म है आपके घर में? डाल दें आप साथ साथ. आपका चार्म क्या है घर में? अगर आप बहुत ओल्ड हो गए, आपका बिल. आपका बिल. आप लोग ना, आप तो पढ़े लिखे, आपने सब बिल लिख दिया होगा. हाँ, जो कट्टा में प्रॉपर्टी है
और जो मम्मी जी के ढेर सारे नेकलेस हैं और हार हैं, उसने कोई सेवा नहीं किया, लेकिन चाहिए सब कुछ। लिव ग्रेसफुली, एंड ग्रेसफुल लिविंग इज आई हैव माई गॉड, आई हैव माई सत्संग, आई एम फुलफिल्ड बाय माई सेल्फ। हमें किसी के हमें पास आके बैठो न बैठो में फर्क नहीं पड़ता। I realized that God alone was important in this whole life. If I have realized through all my actions and all my relation, और आप लोग कई रिलेशन तो खत्म भी हो गए होंगे। आप कितने बार आप क्रिमेशन ग्राउंड में गए होंगे, शमशान घाट में गए होंगे, कितनी बार आप रसूलाघाट घाट में गए होंगे, कितने बार क्रिमेटोरियम में गए होंगे। एक दिन अपने भी जाएगा। गुरुदेव बोलते थे, death is the procession, your procession in which you are absent, last procession of your life. एक दिन अपना भी जाएगा। जैसे आपको खबर आती है ना, एक कार्ड में बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताश्री ये सब अब नहीं रहे। इस वजह से एक दिन आपका भी और हमारा भी नाम आएगा, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि अब नहीं रहे। आपका कमरा खाली रहेगा, मोबाइल भी खाली रहेगा। तो किसी को देते नहीं मोबाइल ना, पासवर्ड बता दीजिए किसी को। आपके मोबाइल में कई ऐसे लोग नंबर हो जो नहीं है, आपने डिलीट ही नहीं किया, है ना ऐसा? हाँ, कहीं कॉल आ गया तो whole world is meant to realize something bigger in this. भगवान सबसे इम्पोर्टेंट थे। बहुत पैसा, बहुत रिलेशंस, बहुत इज्जत, सब के सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब एक्स टीचिंग सब में एक्स लग जाता है, मतलब एक्स मतलब योर एक्स बाय जेड। बहुत अच्छा था, कुछ में नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट हमें बनाना है, एंड दैट इज कॉल्ड द वे ऑफ वाइज लिविंग। So these are the 4 points I have. 4 points I have said. 4 points. First was accepting without expecting. Second was loving without attaching. Third was planning without worrying. And fourth is realizing without brooding. I realize God alone is the truth here. हम खुश हैं भगवान के साथ, इसीलिए सत्संग हेल्प करना, इसीलिए पूजा हेल्प करना। ओल्ड एज एक ऐसी ओल्ड है, आपको एकांत में नहीं जाना है, सिस्टम आपको एकांत में रख देता है। You need not go to solitude. You pushed into solitude. किसी के पास टाइम ही नहीं हमारे लिए, हमारे पास टाइम ही टाइम है। I have all the questions, nobody asks any answers. हमारे पास सारे आंसर्स है, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता। This is my old age, but old can be gold if we are with the God. If we are with the God, loneliness should not be there. अकेलापन नहीं होना चाहिए। अकेले हम हैं अच्छे, बहुत अच्छे। हमारा टाइम हो गया। I thought I'll speak only for half an hour, लेकिन आपका प्यार था। कहाँ है नरेंद्र जी? हाँ, वो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम तो आपके पास आए आपसे मिलने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। आपने सुना, थैंक यू सो मच। हमारा आपको बहुत बहुत प्यार। भगवान का नाम लीजिए, आनंद में रहिए, खूब हंसिए, हंसाइए, और सबको खूब प्यार दीजिए। थैंक यू और हरि बोल। That's okay. Question answer. समय हो गया क्वेश्चन? साढ़े 9। कोई कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहता है? रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस राजेश जी से, वो आके जरा फॉर्मल प्राइज दे दें। आप सभी ने स्वामी जी का
जो प्रवचन सुना और हम कह नहीं सकते, हम तो बिल्कुल आग में विभोर हो गए। ऐसे लगा कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसी ने सारी समस्याओं का हल बता दिया, गंगा जल पिला दिया। गंगा जल पिला दिया। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ गंगा भी है, यमुना भी है, संगम भी है, और स्वामी जी स्वयं जो है वो प्रयाग से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपके आवे से, यहाँ बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी। हम लोग कुछ कह नहीं सकते आपका इस इलाहाबाद से, प्रयागराज से इतना जुड़ाव हम लोग को बड़ी खुशी होती है। जब हमें मालूम नहीं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हमारे प्रयाग का कोई भी व्यक्ति जो है पूरे संसार में बिल्कुल तारे की तरह चमकता है, सूर्य की तरह चमकता है, तो कितनी खुशी होती है आप इसकी कल्पना करिए। तो आज हम लोग को स्वामी जी वो सभी को यहाँ पर जो है बहुत ही खुशी हो रही है कि आप वर्ल्ड में, अफ्रीका में इस समय जो है जो कि मोदी जी की कृपा से, मोदी जी के प्रयास से G20 का भी हिस्सा बन गया, जो कि अभी तक नहीं था। तो और स्वामी जी हम कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। स्वामी जी ने बताया हमको कि एक्सेप्टेंस विदाउट एक्सपेक्टेशन, पहली बात। दूसरी बात लव विदाउट अटैचमेंट। तीसरी बात प्लानिंग विदाउट वरिंग। चौथी बात रियलाइज विदाउट रूटिंग। ये चारों चीजें हम लोगों के लिए कितनी आवश्यक है। ये हमारे दिन की समस्याएं हैं। मैं आपको आपने हम दोहराएंगे नहीं स्वामी जी, आपने इतनी बात कही, हम अपने लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताएं। हमारे पास में बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे। हम कुछ दिन ऐसे जुरिस्डिक्शन पे बैठे जहां पर कि हस्बैंड और वाइफ के बड़े डिस्प्यूट्स हुए, बहुत डिस्प्यूट्स हुए, और डाइवोर्स के स्टेज पर या प्री डाइवोर्स स्टेज के मैटर्स आए। स्वामी जी इतने छोटी जब हमने उनको जो है काउंसलिंग किया तो मैंने पाया कि कुछ भी डिस्प्यूट नहीं है, छोटी बातों पे डिस्प्यूट है कि उसने इतने बजे खाना बना करके नहीं दिया, उसको देना चाहिए था, उसको खाना बनाना नहीं आता है उसको खाना बनाना चाहिए, उसने हमारी माँ के लिए ये नहीं किया, उसको करना चाहिए। ये हमारे पे ये बड़ी भारी समस्या है कि पेरेंट्स के साथ में अब नई जनरेशन हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। बड़ी भारी परेशानी है। और पर्टिकुलरली जो विलेजेस में हैं और उनका एक बच्चा बाहर पढ़ने चला गया है, वो रह रहा है, लड़का चाहता भी है कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, लेकिन उसकी वाइफ जो है कतई रखने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल एकदम मना कर देती है। और ये कॉज ऑफ प्रॉब्लम बन गई है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट बन गई है, ये सिचुएशन एराइज हो गई है। तो आपने सही कहा कि ये तो उनकी तरफ की प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये प्रॉब्लम कह करके हम अपनी प्रॉब्लम को अब ज्यादा जनरेट नहीं करना चाहते। अगर हम जनरेट करेंगे तो केवल वही पे रहेंगे। तो हमें अपने आप को खुद समझना पड़ेगा, चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और अपनी वही को दूर करने के लिए जो है हमें हर सिचुएशन पे खुश रहना पड़ेगा। स्वामी जी हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस बताएंगे। आप तो बहुत वो हैं, मैं लखनऊ बेंच पे बैठ रहा था, बहुत सारे केसेस आते थे, एक केवल छोटा सा इंसिडेंस बताएंगे कि एक लेडी थी, बिल्कुल डाइवोर्स की स्टेज पे थी। मैं चैम्बर में बैठ करके उसको काउंसलिंग कर रहा था कि किसी तरीके से। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए
जहां पर कि मैंने जो है करेक्ट स्टेज को जो है वो ऐसे निपटाया कि सब जो है कि वो फाइनली जो है एक दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया और दे आर लिविंग इन ए वेरी हैप्पी लाइफ। ये केस था, वो कहे कि साहब, हमने पूछा क्या प्रॉब्लम है? साहब हमारी सास बहुत हमसे नाराज रहती है, बहुत नाराज रहती है, मेरा समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो जो आपने बताया बस उसी को मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल से जो है। तो मैंने कहा तुमने अपनी सास को कितनी बार चाय पिलाया है? तुम्हारी सास तुमसे बहुत नाराज रहती है, तुमने कितनी बार चाय पिलाया? साहब चाय तो नहीं पिलाया हमने कभी नहीं। तो हमने कहा क्यों? चाय से तुमको अपनी सास से कोई लगाव नहीं है? तो बोले है तो, लेकिन जब भी हम जाते हैं तो पता नहीं कैसे बोलती हैं वो हमसे, बड़ी अब्यूसिव तरीके से बोलती है, हम अपने आप को नॉर्मल नहीं फील कर पाते हैं। तो हमने कहा केवल इस ग्राउंड पर, इस कारण से तुम जो है अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती हो, अपने घर को छोड़ना चाहती हो? बोला हमारा मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे। हमने कहा अच्छा, तुम्हारा हम मामला जो है 1 महीने के बाद लगाते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम अपनी सास को चाय पिलाओ सुबह सुबह। और मैं आपको बताऊं कि 1 महीने के बाद जब हमने डेट लगाई थी तो 1 डिब्बा मिठाई लेकर के आ गई। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल भी ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है कि कोई भी जो है वो मिठाई लेकर के आए। हम लोगों को डर लगने लग जाता है अगर कोई मिठाई लेकर के आ गए। लेकिन साहब वो 1 डिब्बा मिठाई लेकर के हमारे चैम्बर में आकर के बाहर बैठ गई। हमारा चपरासी बोला कि साहब ये तो बहुत देर से बैठी हुई, हमने क्या मामला है? बोले साहब कह रही थी कि हमारी डेट लगी हुई है आदमी करने की। तो हमने कहा कि अच्छा, तो चपलाओ उसको। बोले साहब आपने बताया था, मैंने अपनी सास को चाय पिलाना रोज शुरू कर दिया, हमारा मामला सेटल हो गया, मैं उस घर में आराम से रह रही हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आपने सही बात करी। सबको मिल करके पहली बात तो ये है कि हम दूसरे के यहाँ की लड़की लेकर के आते हैं, इसलिए हमें सीखना पड़ेगा कि हम उसको किस तरीके से सुखी रख सकें। ये प्राइमरी ड्यूटी हम लोग इस एज के हो गए, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, जो कि नहीं होती। हमारे फर्स्ट डे या 1 हफ्ते के बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस को हमको रखना ही नहीं है, और हम कोशिश करें कि हम दूसरे की लड़की को लेकर के आए हैं, उसको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं हो। जितना सुख दे सकते हैं उतना सुख दे, उसको जितना प्यार दे सकते हैं उसको ट्रीट करिए कि ये हमारी लड़की की तरह है और हम उसके पेरेंट्स की तरह हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याएं अपने आप हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस मत करिए, लव करिए विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो स्वामी जी, हम ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, सारे लोगों ने आपकी बात सुनी, हम लोग धन्य हुए, वास्तव में हम लोग धन्य हुए। धन्यवाद तो हम कैसे आपको दें, धन्यवाद तो देने की स्थिति में हम लोग नहीं है। बस आशा जरूर रखते हैं और अनुरोध रखेंगे कि जब भी आप प्रयागराज में आए और आपका बने, हम लोगों को जो है थोड़ा टाइम दीजिए। हम लोगों के मेंटल सेल्स जो हैं वो डेड होती जा रही हैं। आपके प्रवचन से हम लोग रीजुनरेट हो जाते हैं। मिशन में आके सुनिए, मिशन में आके वहाँ तो आप आते ही हैं, लेकिन देखिए वहाँ पे तो आप गीता का प्रवचन करते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात वहाँ पर एक दिन के प्रवचन में कही, अंत में मैं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर आने पर क्या है कि एक आप सीनियर सिटीजन्स को जब आप एड्रेस करते हैं तो उनसे रिलेटेड इशू को जब आप आज आपने पूरा हमसे रिलेटेड, हमारे रिलेटेड इश्यूज को आपने एड्रेस किया जो है, तो इसलिए क्या है कि हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप अगली बार आए फिर हम लोगों को इसी तरीके से टाइम दें। देखिए हम लोगों ने सीनियर सिटीजन्स का ये काउंसिल बनाया है, केवल यही रीजन से बनाया है कि हम लोग जुड़े, एक दूसरे की तकलीफ आराम को देखें और उनके सुख दुख में हम लोग जो है पार्टिसिपेट करें और हंसे, खूब हंसे, एक साथ मिल करके हम लोग खूब हंसे, जिससे कि जो है जो हमारा न्यूरोकेमिकल है जो कि हमारे ब्रेन को डेड कर रहा है वो हमारा रीजनरेट हो। तो ये स्वामी जी आपसे प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से हम लोगों का जो है रीजनरेशन